السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے پھر سے ایک نئی چیپٹر لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے چیپٹر کی شروعات کریں گے، ایک نئے چیپٹر کو جان لیں گے، ایک نئی چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نئے چیپٹر کو پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ۔ اس کو اردو میں عالمی حدت کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام دیا گیا ہے جس کا نام ہے تمازت ارضی، یعنی گلوبل وارمنگ کو اردو میں دو نام دیا گیا ہے، نمبر 1 عالمی حدت، نمبر 2 تمازت ارضی، ٹھیک ہے ناظرین؟ اور یاد رکھیے گا ناظرین، آج کا جو سبق ہے ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ اور آج کے سبق میں کوئی رائٹر وغیرہ نہیں دیا ہوا ہے، یعنی رائٹر وغیرہ کے نام کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ سبق بہت ہی ضروری، بہت ہی اہم ہے۔ یہ صرف آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ آپ ہندوستان کی حالات کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ اسی وجہ سے اس چیپٹر کو آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، آج کا جو سبق ہے وہ ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضمون۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے مضمون کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہوں گے اس وقت آپ کی جو ٹیچرس ہوتے تھے وہ آپ کو کیا بولتے ہیں؟ مضمون لکھنے کو ضرور بولتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ گائے کے اوپر نبندھ لکھ کر کے آؤ، اسکول کے اوپر نبندھ لکھ کر کے آؤ، بھینس کے اوپر نبندھ لکھ کر کے آؤ۔ تو جس چیز کے اوپر آپ نبندھ لکھتے تھے اسی کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ مضمون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اور آپ لوگ جب لکھتے ہوں گے نبندھ تو وہ ایک چھوٹا سا ہوتا تھا، لیکن آج کا جو سبق ہے، آج کا جو مضمون ہے ایک لمبا سا مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ لمبا سا سبق ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کو جان لیتے ہیں۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا، مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے، یعنی مضمون چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے۔ اور مضمون دنیا کی کسی بھی چیز پر لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کے لیے کوئی ٹاپک فکس نہیں ہے، کوئی موضوع کی قید نہیں ہے۔ کسی بھی چیز پر، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ مضمون کی تعریف تھے۔ اب آئیے ہم سبق کی شروعات کر لیتے ہیں۔ سبق کی شروعات آئیے ایک شعر سے کرتے ہیں۔ شعر ہے کہ تو فکر کرتا ہے کیوں فکر سے ہوتا ہے کیا، تو فکر کرتا ہے کیوں فکر سے ہوتا ہے کیا، اور کر لے آج خود پہ بھروسہ پھر دیکھ آگے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کیجئے، پھر دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو آئیے آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق ہے کہ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے، اور یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے، یعنی اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، سب کے لیے مناسب ہے، سب اس زمین پر رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جانور ہو گیا، چرندے ہو گیا، پرندے ہو گیا، درندے ہو گیا، انسان ہو گیا، حیوان ہو گیا، یہ سارے کے سارے اس زمین پر کیا کر سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں۔ اس زمین کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی زمین ہی نہیں ہے جہاں پہ ساری کی ساری چیزیں رہ سکتی ہیں، ایسی کوئی زمین نہیں ہے۔ صرف ہماری ہی زمین ایک ایسی زمین ہے جو سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے، سب اس میں آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ بالکل کیا ہے؟ نارمل ہے، معتدل ہے، اسی لیے سب چیز یہاں پہ آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 30 سے 40 برسوں سے ہماری زمین کا درجۂ حرارت، زمین کا درجۂ حرارت جسے انگلش میں ٹیمپریچر کہا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا؟ بڑھ رہا ہے۔ تو زمین کے درجۂ حرارت آہستہ آہستہ جو بڑھ رہا ہے اسی کو سائنسدانوں نے گلوبل وارمنگ کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ یعنی گلوبل وارمنگ کسے کہتے ہیں؟ زمین کے درجۂ حرارت کو کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پچھلے 30 سے 40 برسوں سے ہماری زمین کا درجۂ حرارت کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اور یاد رکھیے گا یہ جو گلوبل وارمنگ ایک عالمی سنگین مسئلہ، کیا ہے؟ سنگین کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ ایک خطرناک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ہندوستان ہی میں موجود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں یہ کیا ہے؟ یہ بیماری موجود ہے۔ کن کن ملکوں میں موجود ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، جاپان ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، ان سارے ملکوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، یہ بیماری کیا ہو چکی ہے؟ بڑھ چکی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، آپ یہ سوچتے ہوں گے آخرکار یہ بیماری کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس بیماری کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے؟ تو ناظرین اس کا سب سے بڑا جواب ہے کہ ہم خود انسان، کیا ہے؟ ہم خود انسان، یعنی انسان کی زیادہ
ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये बीमारी बढ़ रही है। नाज़रीन ज़रा सोचिए, जब इंसान की तादाद बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे कट जाएंगे। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीमारी बढ़ेगी, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तमाज़त अर्दी यानी आलम हिद्दत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या बोलते हैं, ज़रा सोचिए, जब पेड़ वगैरह कट जाएंगे और जब ना पेड़ पौधे रहेंगे ना जंगल वगैरह रहेगा तो उससे क्या होगा, गैस पैदा होंगे। कौन कौन से गैस पैदा होंगे, साइंसदानों ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगा, मेथेन गैस पैदा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड ये गैस पैदा होगा, और ओजोन ये गैस पैदा होगा। ये सारे गैस पैदा होंगे। कैसे पैदा होंगे, जब ज़्यादा ज़्यादा पेड़ कट जाएंगे और ज़्यादा अगर इंसान की तादाद बढ़ेगी तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियों को खरीदेंगे, तो मोटर गाड़ी जो खरीदेंगे उससे जो धुआं निकलता है नाज़रीन, उससे भी ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बीमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो जब ये क्या बोलते हैं, पेड़ कट जाएंगे, पौधे कट जाएंगे और ज़्यादा लोग गाड़ियों को खरीदेंगे, ज़्यादा कारखाने खुल जाएंगे, तो यानी फैक्ट्री वगैरह खोलेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, धुएँ जो निकलेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और नाज़रीन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस जो है पहले की मात्रा में 31% अब ज़्यादा बढ़ने लगा। कितना प्रतिशत, पहले अगर 10% था ना, अब 31% ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। और मेथेन 149% बढ़ने लगा। कितना, कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मेथेन गैस जो है 149%, पहले की मात्रा में 149% बढ़ने लगा है। और नाजरीन जानते हैं ये जो मेथेन गैस है ये कैसे पैदा होता है, ये गाय के गोबर, गाय बैल भैंस के गोबर और धान के खेतों से पैदा होता है। यानी गोबर लोग क्या करते हैं, पहले के ज़माने में लोग क्या करते हैं, गोबर को जलाते थे, उससे जला के खाना वगैरह बनाते थे, तो उससे जो धुआं निकलता था या फिर निकलता है उससे भी ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, बढ़ती है। तो उस गोबर को जलाने से हमें बचना चाहिए और मोटर गाड़ियों को कम से कम खरीदना चाहिए और जंगलों को कम से कम काटना चाहिए, पेड़ पौधों कम से कम काटना चाहिए, ताकि क्या हो सकती है, बीमारी कम हो सकती है, बीमारी ख़त्म हो सकती है हमारे समाज से, हमारे मुल्क से नाज़रीन। ठीक है, साइंसदानों का ख्याल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, साइंसदानों का ख्याल है कि पिछले 100 बरसों में ज़मीन का दर्जाई हरारत 0 डिग्री 75 कितना 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। साइंसदानों का कहना है कि पिछले 100 बरसों में ज़मीन का दर्जाई हरारत 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर ये बीमारी इसी तरह बढ़ती चली गई, ये बीमारी इसी तरह बढ़ती चली गई, तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो सकता है, ये बीमारी बढ़ सकती है। 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक ये बीमारी बढ़ सकती है। नाज़रीन ज़रा सोचिए, जब ये बीमारी इतने तादाद में बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, कोई ख़तरनाक, मतलब कोई हमारे लिए कोई, अगर ये बीमारी इतने तादाद में बढ़ेगी, ये बीमारी इतनी जल्दी बढ़ेगी तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्या क्या हो सकता है ये बीमारी बढ़ने से, क्या बोलते हैं, सैलाब आ सकता है, कहद साली आ सकती है और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकते हैं। जब सैलाब आएगा तो क्या हो सकता है, बांग्लादेश ये डूब सकता है और हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा डूब सकता है, मालदीव वगैरह ये सब क्या हो सकता है, डूब सकता है। जब ये बीमारी बढ़ेगी ना तो ज़्यादा सैलाब आएंगे, ज़्यादा कहत साली आएगी। ठीक है नाज़रीन, यानी जब ये बीमारी बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, यानी तो बिल्कुल ही बारिश नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, जंगलों को कटने से बचाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, अब हमें इन हालात में क्या करना चाहिए, यानी जब ये बीमारी बढ़ रही है तो हमें इन हालात में क्या करना चाहिए, हमें इन हालात में ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को गर्म होने से बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़मीन को गर्म होने से बचाना चाहिए और पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलानी चाहिए। और नाज़रीन इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या करना, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्योटो में 2007 में, कितने में, 2007 में क्योटो एक मुल्क है या फिर एक शहर है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस मनाया गया था कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, जैसे अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिसका नाम एल गोरे था। क्या था, अल गोरे था, अल गोरे। तो वो भी आए थे, उन्होंने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। तो बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन फिर 2008 में, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, 2008 में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, कितने, 2008 में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों के लिए एक कॉन्फ्रेंस मनाया गया था। कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए एक कॉन्फ्रेंस मनाया गया था। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उसमें 32 मुल्कों से लोग आए थे। कितने मुल्कों से, 32 मुल्कों से लोग आए थे और 506
556 तलबा यानी स्टूडेंट आए थे, और 165 असातिज़ा यानी टीचर्स आए थे। 165 टीचर्स, 556 तलबा और 532 मुल्कों नहीं और 32 मुल्कों से लोग आए थे। कितने मुल्कों से? 32 मुल्कों से लोग आए थे, 556 तलबा आए थे और 165 उस्ताद आए थे। ये सारे लोग आए थे कहाँ पे? यहाँ पे देखिए शहर दीमापुर में, भारत के नागालैंड शहर दीमापुर में ये कॉन्फ्रेंस मनाया गया था। उसमें इतने सारे लोग आए थे और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट जिसे अब्दुल कलाम कहा जाता है वो भी गए थे उसमें। और उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने हम लोगों को बताया था, सारे बच्चों को बताया था कि अगर इस बीमारी को हम लोग अपने मुल्क से, अपने शहर से ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए तो ये बीमारी हमारे मुल्क से क्या हो सकती है? ख़त्म हो सकती है। क्या कहा था? APJ अब्दुल कलाम ने एक जादुई मंत्र बताया था। वो जादुई मंत्र ये था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितने? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे एक साल में 5-5 पेड़ लगाएंगे तो ये बीमारी हमारे मुल्क से क्या हो सकती है? ख़त्म हो सकती है। हमें सुकून मिल सकता है। तो नाज़रीन, हमें भी ये चाहिए कि आपको और हमें ये चाहिए कि हम अपने गांव में, जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ कम से कम एक साल में 5 पेड़ लगाए। अगर हम लोग 5 पेड़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म हो सकती है। आप लोग जानते होंगे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। कितने? 140 करोड़ है। अगर 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो ये बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म हो सकती है। तो नाज़रीन, आज का ये सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है कि अगर हम अपने आप को अच्छे से रखना चाहते हैं, स्वस्थ यानी फिट फाट रखना चाहते हैं, अपने मुल्क को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना? और इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा और जो पेड़ लगे हुए हैं उसको कटने से बचाना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन? तो ये सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आइए हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मारूज़ी सवालात। क्या है मारूज़ी सवालात? मारूज़ी सवालात का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? कैसा मसला? एक संगीन मसला। हम आपको शुरू में बताए थे ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला। कैसा है? एक संगीन मसला। ठीक है। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा? यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ। कितना हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ। तीसरा सवाल कह रहे हैं ज़मीन का दर्जा या हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ज़मीन का दर्जा या हरारत यानी टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिछले 100 वर्षों में ज़मीन का दर्जा या हरारत 0.75 डिग्री सेल्सियस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ठीक है नाज़रीन? उसके बाद चौथा सवाल कर रहे हैं बालोगियान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था? 2008 में बालोगियान कांग्रेस जो हुआ था, ये बालोगियान कांग्रेस भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था? भारत के दीमापुर शहर में। देखिए शहर दीमापुर यानी भारत के शहर दीमापुर में 2008 में ये मुनक़िद हुआ था कॉन्फ्रेंस। ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल कह रहे हैं क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो इसका जवाब 2007 में। कितने में? 2007 में। आपका ये मुख्तसर तरीन सवालात यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ से मुख्तसर सवालात शुरू होता है। नाज़रीन, आप लोग परेशान मत होइए, इंशाअल्लाह हम जितने भी सवालात पढ़ा रहे हैं इसका जवाब हम आपको आखिर में स्क्रीनशॉट करके दे देंगे। आप उसका फ़ोटो ले लीजिएगा। ठीक है ना? यानी हम फ़ोटो दे देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर उसको आप आसानी के साथ अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड पे जो भी चीज़ें लिखी है बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको भी आप एक मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारे सवालात आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है, मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेहतरीन नंबर आएगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, हमें प्यार और मोहब्बत से ज़रूर नवाजिएगा ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। ठीक है नाज़रीन? चलिए आपका यहाँ से मुख्तसर सवाल शुरू होता है। ठीक है। पहला सवाल कह रहे हैं ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? तो देखिए ज़मीन यहाँ पे लिखा, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हुए एक सैयारा है और ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ठीक है ना? ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, यहाँ पे सभी जानदार लोग रह सकते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला, एक पेचीदा मसला। ठीक है ना? तीसरा सवाल कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है?
ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, क्या है? तो ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत का इजाफा हो रहा है उसी को साइंसदानों ने ग्लोबल वार्मिंग कहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत का इजाफा हो रहा है उसी को साइंसदानों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। चौथा सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैस के असरात, तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस हैं वो पूछ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ओजोन हो गया। ये चार गैस है। कितने गैस है? ये 4 गैस ग्रीन हाउस गैस में पाए जाते हैं। उसके बाद पांचवा सवाल कह रहे हैं ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है। ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस का कितना इजाफा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का 31% और मेथेन गैस का 149% इजाफा हुआ। ठीक है नाज़रीन, इस तरह से आपको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद छठा सवाल कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था। तो APJ अब्दुल कलाम ने हम लोगों को ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे एक साल में अगर 5-5 पेड़ लगाए तो इंशाअल्लाह ये बीमारी हमारे मुल्क से क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आपका तवील सवाल शुरू हो जाता है। पहला सवाल कह लें ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसत का इजाफा हो रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। पिछले 30 से 40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इस दर्जा हरारत में जो औसत का इजाफा हो रहा है उसी को साइंसदानों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। ठीक है। दूसरा सवाल कहने ग्लोबल वार्मिंग क्या असबाब है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या असबाब है, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस गैस के असरात है। किसके असरात है? ग्लोबल वार्मिंग के वजह ग्रीन हाउस गैस के असरात है। जैसे असरात मतलब किस वजह से फैल रहा है, तो इस वजह से बेशुमार कुल कारखानों का खुल जाना, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों में इजाफा हो जाना, इन्हीं वजह से क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग फैल रही। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे, यानी जब ये बीमारी बढ़ जाएगी तो क्या क्या ख़तरनाक मुसीबतें आ सकती हैं, किन किन मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाने से पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाएगी, तूफ़ान आएगा, सैलाब आएगा, कहत साली आएगी। तो इन सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तूफ़ान का आना, सैलाब का आना, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कहत साली का आना, इन सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद चौथा सवाल कह लें कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम क्या क्या अक़दाम उठाए जा सकते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और उससे बचने के लिए दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस की मिक़दार को कम करना पड़ेगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, शजरकारी की तहरीक चलानी होगी। ठीक है ना, शजरकारी की तहरीक चलानी होगी, पौधों को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस की मिक़दार को कम करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी खुद ब खुद हमारे मुल्क से क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा सवाल और आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़े हैं उन्हें चुन करके जुमले बनाइए। इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़े हैं उन्हें चुन करके जुमले बनाइए। तो नाज़रीन यहाँ पे एक दो अल्फाज हम लिख देते हैं। ठीक है, बेफ़िक्र, ठीक है नाज़रीन, बेशक, ठीक है नाज़रीन। कह रहे इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़े हैं उन्हें चुन करके जुमले बनाए। तो ये बे जो है ना ये क्या है, साबिक़े, और ये जो फ़िक्र है ना ये क्या है, लाहिक़े, यानी पहले वाले अल्फाज को साबिक़े कहते हैं और दूसरे वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, लाहिक़े कहते हैं। जैसे बेशक, तो बे जो पहले वाला अल्फाज है अलग है, बे अलग है। कैसे अलग है, कि क्यों बे यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो बे जो है वो क्या हो गया, पहले वाला, बे जो है पहले वाला साबिक़े होता है और दूसरे वाला आखिर वाला लाहिक़े होता है। तो बे क्या हो गया, साबिक़े हो गया। ठीक है ना, बे साबिक़े हो गया और शक लाहिक़े हो गया, बे साबिक़े हो गया और फ़िक्र क्या हो गया,
لاحق ہو گیا، اور ان سے الفاظ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کیسے الفاظ بنائیے گا؟ بے شک، یہاں کیسے دیکھیے، ایک منٹ. بے شک اللہ بے شک اللہ ایک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ جملہ بن گیا. کیا بولے؟ ان سے سن کر کے جملے بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بے شک اللہ ایک ہے، بے فکر. تو آپ اس سے کیسے جملہ بنائیے گا؟ تم بے فکر ہو، تم اپنے پڑھائی کے حوالے سے بے فکر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تم اپنے پڑھائی کے حوالے سے بے فکر ہو. جملہ اس طرح سے بنائیے گا، یہاں پہ جو بھی الفاظ ہیں وہ جملے کے اندر آ جائے. جیسے یہاں بے شک تھا، یہاں پہ جملے کے اندر آ گیا بے شک اللہ ایک ہے. بے فکر، تم اپنی پڑھائی کے حوالے سے کیا ہو؟ بے فکر ہو. یا پھر تم اپنے دوستوں کے حوالے سے بے فکر ہو، تم گھومنے پھرنے کے حوالے سے بے فکر ہو. اسی طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہو سکے تو ہم اس کے لیے ایک نیا ویڈیو 6-7 منٹ کا یا 4 سے 5 منٹ کا ہم آپ کو بنا کر کے آپ کے لیے بنا کر کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سابقے اور لاحقے والا ایک نیا ویڈیو لے کر کے آ جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ جائیے گا اور دیکھ کر کے آسانی سے ساری چیزیں سیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے ناظرین؟ یہ سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.